Welcome to Students Wala. Today I have brought to you a shortcut method to find out the trigonometric ratio for any angle which is given to you between 0 degrees to 360 degrees. In the last class I couldn't discuss it because it would take long to discuss that particular thing. So when we are learning about vectors, it is very important that you remember the trigonometric ratios. Though in CBSE you have to do it in standard 10, but it's better to do it earlier, right? Because that is going to help us in the chapter motion and also in the upcoming chapters in physics which we are going to deal with. Alright, so it is very important that you remember all the ratios. Just don't remember this thing, okay? This particular thing in radians, you will not understand it. It's not important for you right now. Okay, so don't remember this, but instead you have to remember the values, the exact values. Okay, we'll be discussing that right now. I'm not going to give you the proofs. Okay, this ND stands for not defined. Okay, wherever ND is standing, it stands for not defined. Now see, how can we learn it by a trick? Let's do it by heart. So when you remember sine theta, you can remember everything. Okay, either you learn it by heart by practicing it all the day, otherwise there's a trick for you here. That's why we are here for making a video. So either you remember it by heart or the trick which you're going to use right now. So see, sine theta. When you remember the values of all the sine thetas of all the angles, you're going to do the same, the cos theta, tan theta, it will be tackled easily. Now what's the trick for sine theta? Okay, now let's go to the next page. I'll tell you. When you have to remember the sine theta for any particular angle, what you're going to do is, it's very important that from 0 degrees to 90 degrees. How many degrees are there? 1, 2, 3, 4, 5. Let's make it clear to you. We have 1, 2, 3, 4, 5. Right? 5 are there. Only from 0 to 90 degree I am telling you first. कि 0 से 90 डिग्री तक कैसे याद करेंगे. ठीक है, उसके बाद इसका अलग स्टेप है. ठीक है, इसके लिए अलग प्रोसेस है. 0 to 90 के लिए अलग प्रोसेस है एंड 180 से 360 के लिए अलग प्रोसेस है. तो 0 से 90 के लिए देखो क्या है. कितने एंगल्स हुए टोटल मैंने अभी बताए. इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंगल्स है. तो 0 से लेकर 4 तक लिए 5 ही चाहिए ना मुझे. 1, 2, 3 हो गया ना. 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 0 से 90 तक. अब क्या करना है आगे, तो ये सुनो. एक मिनट, इसको दूसरे कलर से करते हैं. इसे मेरे को डिवाइड करना है 2 से. ऊपर में रूट लगा देना है. ठीक है, ई रैशनल नंबर से पढ़ोगे तो ये जानोगे कि रूट लगाने का मतलब क्या होता है. तो ऊपर में मैंने रूट लगा दिया. न्यूमरेटर सारे में मैंने लगा दिया. प्लस नहीं है, कॉमा है, सारे नंबर्स अलग हैं. ठीक है, ऊपर में सारे में मैंने रूट लगा दिया, नीचे नॉर्मली 2 लिख दिया. अब एक एक एंगल से शुरू करते बताते. पहला एंगल है मेरा साइन 0 डिग्री. तो देखो पहला एंगल है साइन 0 डिग्री. तो 0 डिग्री के लिए पहला वाला देंगे 0 रूट 0/2. ठीक है, रूट 0/2. क्या आंसर होगा? 0/2 विच इज 0. तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट देखो रूट 1/2. क्या है? साइन 30 डिग्री. 0 के बाद 30 लिखा है ना. रूट 1/2. चेक इट. 1/2 या रूट 1/2 वही होगा, है ना. 1/2 मतलब रूट 1/2. अब साइन 45 डिग्री. क्या है? ऊपर में रूट 2 है, नीचे में 2 है. अब देखो इसके लिए अलग प्रोसेस है. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आंसर रूट 2/2 नहीं है. इसमें क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में 2 दिख रहा है मुझे, तो मैं इसमें रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/2 रूट 2 मिलेगा. सही बात है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 रूट 2 मिलेगा. 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√2. ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2. अब साइन 60 डिग्री है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं. ओके, अब है मेरे पास साइन 60 डिग्री. कहां तक कंप्लीट हुआ था? 2 तक. सो नाउ वी विल टेक 3 नाउ. ऊपर में रूट है, रूट 3/2. चेक इट, वैल्यू रूट 3/2 है. सी, दिस इज रूट 3/2. नाउ साइन 90 डिग्रीज. देखो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है मेरे पास? 4 है, रूट 4/2. रूट 4 का वैल्यू होता है 2. इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, चेक करो, 1 है आंसर. क्लियर है ये चीज?
क्या किया हमने यहाँ पर, नॉर्मली मैंने यहाँ पर 1 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिख लिए जो 5 हुए, न्यूमरेटर में रूट लगा दिया, डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। जैसे जैसे साइन 0 डिग्री हुआ, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, वैसे वैसे ऊपर के रूट को एक एक करके निकाल कर वो वैल्यूज मैंने साइन में पुट कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब देखो कॉस थीटा वैसा ही है, कॉस थीटा में भी यही सेम थ्योरम अप्लाई करना है, बताते हो। कॉस साइन बन गया तो कॉस भी बन जाएगा, इजी है। देखो एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पर तुमको साइन के लिए क्या बताया, साइन के लिए बताया कि 0 से फिर 1 2 3 4 ऐसे रूट लगाते जाएंगे एंड नीचे में 2 लिखते जाएंगे, यही आंसर होगा सबका ना। कुछ नहीं करना है इसमें, कॉस में क्या करना है, इसका उल्टा करना है, पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है। यहाँ पे दिखेगा तुमको, जैसे यहाँ 0 ऐसे ऐसे आया तो देखो ये 1 यहाँ पर है, √3/2 यहाँ पर है, 1/√2 यहाँ है, रिवर्स हो गया ना, रिवर्स थ्योरम अप्लाई हो गया। तो इसमें रिवर्स कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। रिवर्स कर दोगे ये निकल गया तुम्हारा कॉस थीटा। अब आगे देखो, कॉस थीटा तो निकल गया, अब टैन थीटा कैसे निकलेगा, याद करो लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू कि टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये मैंने एक रेशियो का तुम्हें बताया था कि टैन थीटा इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो इसको देखते हैं, यहाँ पर मेरा साइन थीटा क्या था, 0 के लिए बता रहे हो, 0 था, कॉस थीटा था 1, तो इसको क्या डिवाइड करेंगे, 0/1 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो टैन थीटा 0 हो गया। वैसे ही इन दोनों को डिवाइड करो आंसर ही आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो ये आंसर आएगा, जस्ट दिस इज द इजी वन, ठीक है। अब मैंने तुमको एक और चीज बताई थी, ये तो हो गया साइन से टैन तक। अब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का इनवर्स, इसका इनवर्स करोगे नॉट डिफाइंड आएगा, 0/1 को 1/0 करोगे नॉट डिफाइंड ही आएगा ना। फिर सेक थीटा क्या होता है तुम्हारा, कॉस का उल्टा होता है, यहाँ 1 है, इसका उल्टा 1 ही होगा। कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा आता है, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वैसे ही है, सब कुछ इजी हो गया। साइन थीटा मैंने फॉर्मूला बता दिया, कॉस थीटा उसी का उल्टा कर देना, टैन थीटा साइन बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा हो गया, सेक थीटा कॉस का उल्टा हो गया, कॉट थीटा टैन का उल्टा हो गया। ये तो बात हो गई 90 डिग्रीज तक। अब आते हैं हम लोग कि 180 से 360 डिग्रीज तक कैसे किया जाए। देखो ये भी इजी है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं वरना ये थोड़ा डर लग रहा है ना। ऊपर भी इरेज हो गया, वेट, देखो यहाँ पर बात हो गई 9। अब देखो 90 तक मैंने बता दिया, अब बात आएगी 180 से 180 270 360। इसके लिए तुमको थोड़ा सा 90 को भी कंसिडर करना होगा, मतलब 90 का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, तुमको बस ये याद रखना है 1 0 -1 0, ये ऊपर वाला याद हो जाएगा, 1 0 -1 0, मतलब 1 आया फिर 0 आया, उसके बाद उसका उल्टा -1 फिर 0 आ गया, ये तो याद हो जाएगा ना, 1 0 -1 0। अब कॉस क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा, देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, 1 है, तो 90 से 360 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तुम, ठीक है। क्या आ गया, 1 0 -1 0, इसका उल्टा यहाँ कॉस आ गया, टैन तो पता ही है, आंसर बाकी सब बन गया, ठीक है। समझ गए क्या होता है 90 से 360 के लिए क्या फॉर्मूला याद करना है, मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि इसमें है 1 0 -1 0, इजी है ना, 1 0 -1 0, व्हाई नॉट रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड कॉस इसका क्या हो जाएगा, 0, पहले 0 लिखा, फिर यहाँ -1 फिर 0 फिर 1, इजी है। एंड फिर टैन थीटा तो ऐसे निकल जाएगा ना, everything easy, right? Take it easy, okay? Don't take it hard. Alright, so this was a super amazing trick for learning the trigonometric ratios from 0 degree to 360 degree. I hope you liked it, and yeah, do comment your doubts and also just try to memorize this trick, because ये trick तो ऐसे याद हो जाएगा ना, इसमें है ही क्या, just try to memorize this trick and whenever we'll be coming to vectors, vector addition में cos थीटा हेल्पफुल रहेगा, तो cos सबका याद रहना चाहिए। बेसिकली तुम्हारे वेक्टर्स जो मैं पढ़ाऊंगी मोशन में, उसमें सिर्फ तुम्हें 3 थीटाज याद रखने हैं, साइन कॉस टैन, ये तो ऐसे याद रहेगा ना, इसका उल्टा है ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा है ना, तो साइन कॉस टैन यही बेसिक मेन है। साइन थीटा हम लोग यूज करेंगे फॉर जब हम लोग कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें कॉस थीटा तुम्हारा लॉ ऑफ एडिशन में यूज होगा, टैन थीटा तुम्हारा लॉ ऑफ एडिशन में यूज होगा, बट टैन अल्फा जैसे डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए यूज होगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सो डू लाइक इट and share with your friends if you do want to do that. So that's it for today.
Thank you very much and have a happy learning journey. Thank you everyone.